ରେ ମୁଁ ଚିर कृतज्ञ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ରୂପକ ଏକ ପାବଚ୍ଛ। ଧର୍ମର ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଗହଣରେ ଜ୍ଞାନୀମୟୀ ଏବଂ କରୁଣାମୟୀ ବକ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ ସମ ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଓଁକାର ଏବଂ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଉଣୀ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନୁଭାବ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଓ ଓ ଓ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆପଣ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏହି ମଧୁର ଶ୍ଲୋକବାଣୀ ଗାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରାଭିମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନର ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମନୀଷା କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବିବେକ ବାଣୀ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆମକୁ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁ। ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ସେଇ ପଦରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବିଧାନ କରେ ତାହା ବିରୋଧରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସଭାରେ ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୃହକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁରବୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଭାରେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେହିପରି ଜଣେ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି ଜେନା ସାର୍ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ସହକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2006 ମସିହାରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି 2007 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ଯୋଗାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯହିଁରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୁନି ସମାଜର ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଥିବା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଥାଇ ସେହି ସଭାର ସଭାପତି ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଗଳ୍ଭା ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି ଜେନା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି ସାର୍ ମହୋଦୟ। ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ।
ତମେ କଣ କହିବା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ହେଲା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ସାର୍। ବିଚାରଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଦ୍ଵାଦଶତମ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣ୍ଡବକ ସ୍ୱର୍ଗମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧି। ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ଯଥାଯଥ ପରିଚୟ ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି PhD ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପାଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ସେ ମହାଶୟା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ତଥା ମହାଭାରତର ମହାନ ଆଖ୍ୟାୟିକା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଭବନ ବିଷୟରେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ରଖିଛେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ଆଲୋଚନା ଅବକାଶରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗବତ ଏପରି ଏକ ବିଷୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯାହାକି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଗାମୀ। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରୀ ପାଠକ ଶ୍ରେଣୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଦାପି କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମାହିତ ଆଉ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁକୁ ପଛ କରି ଆମ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏକ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତରିକତା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଜନ୍ମିକିରି ରହିଛି। ଏହା ହୋଇପାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭାଗବତକୁ ନେଇକିରି ବା ପୁରାଣକୁ ନେଇକରି ନୂଆ କିଛି ଖୋଜିବାର ଜିଜ୍ଞାସା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ଆନ୍ତରିକତା ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବା କେବେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ।
उवाच तापरे अर्जुन उवाच तापरे पुणी दुईटी सुत उवाच अछि। सुत उवाचरे सकल मुनिजन मानक उद्देश्य रे प्रथमे मु कथावस्तु आड़क जीवी तापरे भागवतर से सुत उवाच भितरु मु बाहर करिवि जे सुत उवाच भितरे किभଳି भागवतर महत्व प्रकटित होइछि। सेठी मु कंपेयर करूछि हमर जसवंत दासंकर भागवत भजनमाला सहित एवं संस्कृत भागवतर किछि पंक्ति सहित। तेणु सुत मुनि सकल मुनिजन मानक उद्देश्य रे शोकरे गदगद होई श्रीकृष्ण वियोग जनित दुख को प्रथमे व्यक्त करुछंती। ए अध्याय रे एक कथा सुनी सारिबा परे अर्जुन दुख प्रकाश करुछंती। श्रीकृष्ण सह तांकर जो अभेद संपर्क से अभेद संपर्क को अर्जुन स्मरण करी कहउछंती सखा सदृश नंदबाला सारथी पणे रथे थिला ए आदि जेते कृष्ण गुण सुमरी कांदे पुण पुण राजा को चाही मन खेदे कहई शोक गदगदे। अर्जुन सहित श्रीकृष्ण बंधुता संपर्क रे सारा महाभारतर आदि पर्व प्रथम खंड पृष्ठ 240 रे मध्य वर्णना अछि। सेठी महाभारत रे प्रसंग थिला जे अर्जुन सहित श्रीकृष्ण बंधुता जुग जुग धरी निरवच्छिन्न भावरे गति करी आसीथिबा विषय श्रीकृष्ण व्यासंक निकट रे प्रकाश करुछंती। ए प्रसंग रे श्रीकृष्ण विभिन्न अवतार वर्णना रहिछि। ए अवतार वर्णना परे व्यासंक अनुरोध रे श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वरूप देखाउछंती एवं सारला दास से प्रसंग को से वर्णना करुछंती केमती ना से कहउछंती व्यासंक वचने अर्जुन कुतूहले क्षणके मृधुनी लागिला गगन मंडले आकाशे घोटिला से नारायण काया स्वर्गे सिरे होइले अद्भुत माया। भागवत रे ए अध्याय रे ए 15 अध्याय रे अर्जुन उवाच प्रसंग रे अर्जुन श्रीकृष्णंकर गुण स्मरण करुछंती। सुतमुनिଙ୍କ कथा सुनिबा परे अर्जुन कहउछंती मु चिरदिन पई कृष्णंकर सानिध्यरु वंचित हेली काहेकि ना सेतेबेल को श्रीकृष्ण देह त्याग करि सारलेनी। मोर जीवन बंधु को हराई मु हतश्री पालटी गली। मोर सामर्थ्य मोर प्रताप सब किछि लोप पाई गला। मोर तेज मध्य कृष्णंक सहित चली गला। अर्जुनंक वक्तव्यरु आमे यह जानि परिबा। से कहउचंती संदेश सुन नरनाथ कृष्ण मु होइली वंचित मोर जीवन बंधु हरि तार वियोगे हतश्री। विजय शरीरे मोहर देख प्रत्यक्ष नृपवर जेतेक प्रताप मोहर देवदानवे अगोचर तेज से कृष्ण संगे गला जीवन थाऊ देह मला। ए प्रसंग रे अर्जुन प्रथमे द्रौपदी स्वयंवर कथा को से मने पकाउछंती। पांडव माने द्रौपदी स्वयंवर को आसीबा पूर्वरु जेते बेले कुरालशाला रे प्रवेश करिथिले से समय रे पांडव मानक मुखरे प्रथमे दामोदर महेश्वर जगन्नाथ श्रीकृष्ण तथा नारायण को उद्देश्य रे से स्तुति करिसंती। एकथा मध्य सारला महाभारत रे हम पाइबा। कवि जगन्नाथ दास एटी प्रकाश करुछंती जे संसार रूपक अगाध सागर को अतिक्रम करिबा को हेले श्रीकृष्ण रूपी नारायणंकर नाम उच्चारण नितांत आवश्यक। द्रौपदी स्वयंवर सभारे श्रीकृष्ण माया करी लाख रखा जाइथिबा स्तंभरे सुदर्शन चक्र को एपरि भावरे स्थापन करिथिले जे जेपरि कि अन्य केही देखि परिबे नाही। एहार उद्देश्य थिला अर्जुन व्यतीत जदि अन्य केही लाख बिंधिबा को समर्थ हुए तेबे ताहा संभव हेब नाही। सर सुदर्शन चक्र रे बाजी तळकु खसी पड़िबो। सभारे उपस्थित थिबा केही एहा देखि पारि नथिले। भविष्यत ज्ञाता भावरे भूपृष्ठ रे केवल व्यासदेव एवं आकाश रे थाई ब्रह्मा केवल एहा देखि पारिथिले। अर्जुन ए प्रसंग को मध्य एठी स्मरण करूछंती एवं कहउछंती अर्जुन वाच भितरे अछि जे राजा मेळे विवाद स्वयंवर काले जेते मिलिले राजपुत्रे कन्या लभन्ते लोभ चित्ते कन्या लभिबा काल गोळे जेसने समुद्र उल्लळे। एहा परे खांडववन दहन प्रसंग को मध्य से स्मरण करूछंती। खांडववन दहन समय रे जेतेबेले इंद्रंक सहित युद्ध करि न पारी
अग्नि खांडवन दहन करिबारे अक्षम होइथिले अग्नि को अर्जुन आ श्रीकृष्णकर साहाय्य मिलिथिला से समय रे अर्जुन श्रीकृष्णकर दिव्यास्त्र प्राप्ति अर्जुनक द्वारा खांडवन दहन इंद्रंकर पराजय खांडवन दहनर 6 गोटी जीवंकर सेठी रक्षा प्राप्ति से अश्वसेन आउ मय तापर खांडवन दहन परे अग्निंक ठारू अर्जुनंकर बहु अमोघ अस्त्र प्राप्ति कथा को से अर्जुन मध्य एटी स्मरण करूछंती एवं स्मरण करने को जाई एटी कवि जगन्नाथ दास लिखुचंती कौन अर्जुनंक स्मरण कथा को जे पशु मारणे जार संगे खांडव बने क्रीड़ा रंगे सेवन अग्नि मुखे तेई लभिली माया सभा मुहि अमर गण तुले पुणी किंचित इंद्र तेज जिणी एमंत मित्र हरि भणी जही अशेष नृपमणि कृष्णंक गुण स्मरण करने को जाई जारासवर सहित युद्ध तापरे द्रौपदी वस्त्रहरण पांडव मानकर लागी पड़ा मागिबा ठारू आरंभ करी अज्ञातवास रे रहिबा पर्यंत सर्वदा सेमानंकर साहापक्ष होइतिले किए ना श्रीकृष्ण तेणु महाभारत युद्ध रे अर्जुनंकर रथ चालना करबा ठारू आरंभ करी प्रत्येक कार्य श्रीकृष्ण पांडव मानकर सखा भाव रे ठिया होइछंती तथापि होचंती से परमात्मा सेथिपाई अकुंठ चित्तरे से परि नैछंती गांधारींकर अभिशाप निजर कुललास लागी केतुका चंडीक दृष्टिर दाढ़रू निजकु पांडव मानकु रक्षा करिबा पाई से भीमंकर द्रौपदी रूपिणी केतुका चंडी को मध्य बर मगाइथिले मात्र ताहा संभव होई पारि नथिला द्वारकार अधिवासी मानक विनाश निमित्त कोकुआ भय मध्य से सृष्टि करिसंती एपरि एक अद्भुत जीव अक्लेशरे समस्त भक्षण करि पारे तार विकट शब्द सुनी द्वारकापुरी इतस्तत धावमान होइछंती परस्पर मध्यरे आक्रमण फलरे से प्रकाश पाउछि कोन ना गोटे विनाशर संघर्ष लौडीर आघात रे जेतेबेले कदम्ब वृक्षरु झरछि महारस से महारस को आमे कादम्बरी रूप नेउछि कादम्बरी रूप से कादम्बरी पान करी द्वारकावासी हतज्ञान होइछंती अर्जुन प्रसंगरे कवि जगन्नाथ दास ए प्रसंग को मध्य आणुछंती एवं कहउछंती कोन ना बारुणी मध्य कले पान भोले ज्ञान एरका सृष्टि करे धरी एकुआरे मरा मरी आत्मा को न जानती भोले मिलिले ब्रह्म साप फले एणे जादव बल नाश रहिले 7-5 शेष एही परी अर्जुन श्रीकृष्णंकर गुण स्मरण करिसंती परम ब्रह्म श्रीकृष्णंक कथा स्मरण करी स्वर्ग गमन निमंते प्रस्थान करुछंती पांडव 5 भाई कृष्णंकर पाद पद्म रे निवेशी निर्मल चित्त स्वरूप चिदानंद नारायण स्वरूप परमात्मा का शरीर रे लीन हेबा पाई अंतिम पर्याय श्री सुत उवाच प्रसंग रे कवि कहउचंती एबे हो सुण विप्र जने कृष्ण महिमा शुद्ध मने गोविंद चरण कमले पंडु कुमार भाव भोले संसार माया दूर कले जगत जन निस्तारिले परम मंगलये बाणी जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी से भक्ति लभे अप्रमादे अंते पसई कृष्ण पादे कृष्ण महिमा सुधा रस कहई जगन्नाथ एठु आबर आसु जे सुत उवाच माध्यम रे कृष्णंकर महिमा प्रख्यापन उपरे से गुरुत्व देइछंती तेणु वर्तमान आमे कथा वस्तु रे कोन अछि ए 15 अध्यायर कथा वस्तु रे कोन अछि आमे जानिले वर्तमान आमे आलोचना पर्याय को आमे आसीबा ए प्रसंग रे मु कहिबा को चाहे जे भागवत हेउछि भगवान श्री कृष्णंकर सप्त ब्रह्म स्वरूप एहार दर्शन पठन श्रवण पूजन और चिंतन रे मनुष्यर समस्त पाप तिरोहित होई जाए गोविंदंकर चरणाश्रित हेले संसार सकल दुख शोक पराहत हुए भागवतर अन्यतम महात्म्य एहा जे एहार समस्त स्कंध भगवानंकर विभिन्न अंग रूप रे मध्य परिकल्पित होई थाए यथा पादौ तु प्रथम स्कंदो द्वितीय जानूनि स्मृता तृतीय सकत्थिनी गेय चतुर्थ कटिरुच्यते
नाभितु पंचमं विद्यात् हृदय षष्ठः सप्तमस्तु उरः प्रोक्तमष्टमः कंठ उच्यते स्कंधौ तु नवम स्कंधो दशम मुखमिरितं कर्णाखि नासिका युक्तः सर्वार्थ परिपूर्णतम एकादश स्तुतमांग द्वादश ब्रह्मरंध्रकम एवं भागवत शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम। तेणु भागवत रत्नाकर रे भागवत को आमे रत्नाकर बोली आमे कहूचे समुद्र बोली आमे कहूचे। तेणु ए भागवत रत्नाकर रे अनेक रत्न संचित होइकी रहिची। से रत्न गुड़िक हूँ कौन ना भक्ति हूँ गोटे रत्न ज्ञान हूँ गोटे रत्न वैराग्य हूँ गोटे रत्न। ए भक्ति ज्ञान आ वैराग्यर अद्भुत समन्वय घटी आमर भागवत रे। तेणु पद्म पुराण रे भागवत महात्म्य कथन रे कथित होइछि जे कली जुगर प्रभाव रे भक्ति देवी एवं तांकर ज्ञान और वैराग्य नामक दुई पुत्र अत्यंत जराग्रस्त होई पड़िथिले। एपरिकी वृंदावन भली भक्तिपूर्ण धाम रे पहुंची भक्ति देवी पुनर्तारुण्य ज्ञान वैराग्य उपेक्षा भक्ति देवी दुख वचन होई पारि नथिला। किंतु भागवत से जेतेबेले सुनिले भक्ति देवी जेतेबेले भागवत श्रवण करूछंती श्रवण करिबा मात्र के भक्ति ज्ञान आ वैराग्यर जागरण घटिला। तेणु श्री सुत उवाचरे जो कुहा जाईछि श्री सुत उवाचरे जो कुहा जाईथिला जे हमर जे कृष्ण महिमा शुद्ध मने गोविंद संसार माया दूर कले जगत जन निस्तारिले परम मंगल एबाणी जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी लभे अप्रमादे अंत पसई कृष्ण पादे कृष्ण महिमा शुद्धारस कहई जगन्नाथ दास। आमे पूर्व अध्याय पूर्व उवाचरे आलोचना करुथिले जे श्रीकृष्णଙ୍କର महिमा गान प्रसंग अर्जुन उवाच भितरे श्रीकृष्णଙ୍କର महिमा गान करूछंती सेठी द्रौपदीଙ୍କ वस्त्रहरण ठारू आरंभ करी खांडववन दहन पर्यंत तापरे हमर जो श्रीकृष्णଙ୍କର वंशनाश पर्यंत उपाख्यान गुडी को आमे पाइले। तापरे अंतिम पर्याय रे ए जो सुत उवाचर पंक्ति भितरे आमे पाउचे भागवत पाठर महात्म्यटा कोन आमे काहे की भागवत पढिबा सेति ए उदाहरणटी प्रदान कली जे भागवतर स्वातंत्र्य कौन रही आम पुराण साहित्य रे एवं भागवत रत्नाकर भितरे कौन संचित कौन की प्रकार मुक्ता संचित होइकरी रही। तेनु सुत उवाच प्रसंग रे जेतेबेले कहा जाउछि जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी परम मंगल रे बाणी सुत उवाच रे दुई धाड़ी अछि। तेनु भागवत श्रवण रे टिके समस्त म्यूट कर दियंतु टिके सार माने टिके म्यूट कर दियंतु अन्य कोठु शब्द आसुची। तेणु सुत उवाच प्रसंग रे जेतेबेले कुहा जाउची जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी परम मंगल ए बाणी आमे काहे के भागवत को गोटे परम मंगल बाणी बोली आमे कहूजे। भागवत श्रवण रे कौन होइथाय भागवत श्रवण रे मनुष्यर हृदयर ग्रंथि उन्मोचित होइथाय समस्त संशय छिन्न होई कर्म क्षीण होई जाय। एनु ए मर्मरे कुहा जाईची भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि श्रवणे कृते। भागवत वैष्णव मानकर श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ ओडिया जातिर परिचय ओडिया मानकर जीवन वेद आम पाई गोटे ज्ञानर भंडार एथिरे ज्ञान वैराग्य भक्ति और निष्काम कर्मर शिक्षा मिले। स्वयं नारायण यह ब्रह्मा को कहिथिले। ब्रह्मांक ठारू जेतेबेले नारदंक ठारू आसिले के ना व्यास एवं व्यासंक ठारू सुकदेव बा सुक मुनि यह लाभ कले आ सुकदेव ताहा परीक्षितंकु सुनाइले। भागवत महत्व प्रतिपादन करने को जाई सुत मुनि कहिले कौन ना सर्व वेदांत सारं
जत ब्रह्मा त्वेकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठ कैवल्यक प्रयोजनम निम्न गानं यथा गंगा देवानामच्युत यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। भागवत हेउची निर्गुण निराकार सगुण साकार ज्ञान भक्ति कर्म जोगमान निहित एक महापुराण। तेणु भागवत को जदि आमे महापुराण बोली कहूचे ताले एथिरे कौन अछि ना एथिरे प्रेम अछि, एथिरे सांख्य अछि, एथिरे मध्य वेदांत तत्व मध्य अछि एवं भारतीय आध्यात्म साधनर समन्वय मध्य एथि घटिछि। तेणु भागवत को भक्त साधक और संत मानकर कंठर हार भाव मध्य व्यक्त करा जायछि आमर श्रीमद् भागवतर 12 स्कंधरे। सेठी कुहा जाउछि कोन, सेठी कुहा जाउछि जे श्रीमद् भागवतं पुराण मलं जद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलं ज्ञानं परं गायते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्य मा विस्कृतम तक्षणन विपीठ विपठन विचारण पर भक्त्या विस्मतेन नरह। तेणु वैष्णव मानक पई एहा प्रिय निर्दोष निर्मल पुराण भागवतरे परमहंस मानकर श्रेष्ठ ज्ञान तत्व सहित ज्ञान वैराग्य भक्ति आ निष्कर्म कर्म वर्णित होइछि। तेणु ए प्रसंगरे मध्य पुराणार्क भागवतरे मध्य मुक्तिर मार्ग नवधा भक्ति कथा मध्य एठी कुहा जाइछि। तेणु ए महापुराण कथा चिंता कले बा भागवत महापुराण कथा चिंता कले आमको भगवत प्राप्ति और मुक्ति मिली थाए। जोथि पाई सुत उबाचरे सेठी सुत उबाचरे कुहा जाउछि जे संसार माया दूर कले जगत जन निसारिले परम मंगल ए बाणी जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी। जो प्राणी शुद्ध चित्तरे ए बाणी को श्रवण करे ताहेले ताको संसार रूपक जंजाल भितरु ताको मुक्ति मिले। तेणु पुराणार्क भागवतरे मध्य ए मुक्तिर मार्ग बा नवधा भक्तिर कथा मध्य कुहा जाइछि। तेणु ए मुक्तिर मार्ग मध्य ए नवधा भक्ति मार्ग भितरु अन्यतम अटे। सेठी कुहा जाउछि कोन ना श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम। जो कथा भगवानंकर गुणावली रे पूर्ण ताहा मनोहर रुचिर नित्यानंद और रसमय होइथाय ताहा मनुष्यर शोकरूपी समुद्र को सुखाई देई ताकू दिव्य आनंद प्रदान करिथाय। भगवानंक गुणावली रे परिपूर्ण रुचिपूर्ण रुचिर रसमय भागवत ही मनुष्य को केवल नित्यानंद प्रदान करिबारे समर्थ होइथाय। तेणु श्रीमद् भागवत रे कुहा जाइछि तदेव रम्यं रुचिरं नव नवम तदेव सस्वन मनसो महाश्चनम तदेव सकारनव शोषणं नृणं जदुत्तम श्लोक जस नुमीयते। भागवतर 11 स्कंधरे कुहा जाइछि उद्धव को उपदेश जते बेले दउछंती देवाछल रे भगवान श्री कृष्ण को कहउछंती जोग साधन द्वारा मते लाभ करा जाई पारिबो नाही, सांख्य तत्व द्वारा मध्य मते लाभ करा जाई पारिबो नाही, स्वाध्याय तपस्या और त्याग द्वारा नुहे केवल दिन को दिन बढ़ुथिबा भक्ति द्वारा ही मते लाभ करा जाई पारिबो। तेणु भक्ति मार्ग ही हेउची उपयुक्त मार्ग ईश्वर प्राप्ति निमंते। तेणु भागवत नियमित पाठ कले मनरे भक्ति संचार होइथाय आ भगवत प्राप्ति संभव होइथाय। एवं सेथि पई सुत उबाचर जो 5टी पंक्ति अछि से 5टी पंक्ति ही होची आम पई सबटु बेसी गुरुत्वपूर्ण। सेथि पई कुहा जाउची कोन ना एबे हो सुन विप्रजने कृष्ण महिमा शुद्ध मने। तेणु कृष्णंकर महिमा सुनिबा पाई आमको प्रत्यह भागवत पाठ करिबा उचित। तेणु भागवत रे कुहा जाइछि जेउ व्यक्ति भगवान श्री कृष्णଙ୍କ कथा केबे सुनी नाही तार कान एक गह्वर समान, जेउ जीव भगवानंकर लीला को गान करी नाही ताहा केवल बेंगर जीव भली जना पड़ी थाए एवं से जीव न रहिले मध्य भल। जेउ मुंड प्रभुंक पादरे नुए नाही सुंदर रेशमी पगड़ी रे बंधा होइतिबा
से मुंड मध्य शरीरर पई एक बोझ मात्र जो हाथ भगवान को सेवा पूजा करी नाही सुनार कंकण पिंधितिले मध्य से हाथ शबर हाथ सह समान जो आखि भगवानंकर जो भगवानंकर मूर्ति को केबे देखी नाही से आखि कौन मयूर पुच्छर आखि सह समान जो पाद भगवानंकर लीलास्थल को यात्रा करे नाही ताहा एक चलंता गल्प गच्छ सहित समान जो मनुष्य भगवानंकर चरण तुलसीर सुगंधर प्रशंसा करे नाही से निश्वास नेउथिले मध्य श्वास रहित शव सहित समान तेणु भगवानंकर मंगलमय नामर श्रवण कीर्तन कले मध्य जो हृदय विगलित हुए नाही ताहा लुहा सहित समान तेणु निजर समस्त अंग प्रत्यंग द्वारा काय मनोवाक्य रे भगवानंकर सेवा करिबा कथा ही भागवतर प्रत्येकटी अध्याय रे कौनसी ना कौनसी उवाच भितरे कुहा जाइछि तेणु भागवत जो पंक्ति कह जाउची जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी से भक्ति लभे अप्रमादे अंते पसई कृष्ण पादे कृष्ण महिमा सुधा रस कहई जगन्नाथ दास भागवत रे कह जाइथिबा विभिन्न सदुक्ति गुडी को एहार महात्म्य भाव रे आमे उपस्थापन करि परिबा भगवान श्री कृष्णकर कथा रस व्यतीत अन्यान्य प्रसंग प्रति आकृष्ट न हेबा पई मध्य भागवत रे परामर्श दिया जाइछि एवं कहा जाउछि कोन ना से कृष्ण कथा रस बिना जेते कवित्वर वर्णना रस कला रे रसी मन से सर्व व्यर्थ कारण श्रीकृष्ण चरण कमल निकट रे नाम संकीर्तन करने को जी डरे सी कपट भक्ति करुथाए तेणु भागवत रे कह जाइछि से कृष्ण चरण कमले जे नाम संकीर्तन बले तही जहार हुए भीति से ही न कपट भक्ति तेणु जन समाज को अंधार मुक्त करिबा पाई हरिचरित दीप ही एकमात्र उपादान तेणु भागवत रे एथिपाई कहा जाइछि हरिचरित दीप धरी जन को अंधार उद्धारी तेणु प्राण प्रयाण काल रे बा जीवनर अंतिम क्षण रे श्रीकृष्ण को स्मरण कले एठी मध्य सेही कथा कहा जाउछि जे प्राणी शुद्ध चित्ते सुनी से भक्ति कले अंते पसई कृष्ण पादे अंते अर्थ जीवनर अंतिम पर्याय रे जीवनर अंतिम सोपान रे जेतेबेले श्रीकृष्ण को स्मरण कले कर्म दोष नाश जाए प्राणी वैकुंठ पद लाभ करे भागवतकार कहिचंती प्राण प्रयाण समय रे जेबे मानव कृष्ण स्मरे क्षण के कर्म को छेदई वैकुंठ पद को लभई धन अर्जन और धर्म संपर्क रे भागवत रे कहा जाइछि धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि समदर्शी हेबा प्राणीर धर्म बोली मध्य भागवत रे कहा जाइछि प्राणीर धर्म पर एही समदर्शी जेबे होई तेणु धर्म उपाय रे उपार्जित धन ही हेउछि दारिद्र्य दूर करी थाए स्वधर्म रे परिचालित विप्र ही शांति लाभ करे एठी जो विप्र जन मानंकु सुत उवाच रे संबोधन करूछंती से विप्र हेउछंती केउ माने ना जेउ माने स्वधर्म रे परिचालित होई थांती सेही स्वधर्म रे परिचालित होइथिबा विप्र माने ही शांति लाभ करंती एनु भागवत रे कुहा जाइछि एनु भागवत रे कहा जाउछि जे धर्मे प्राप्त जेते धन तेणे संतोष जार मन से दुखी दरिद्र नुहई स्वधर्मे विप्र शांत होई अज्ञान अंधकार दूर करी आम मानंकु आलोकित पथ प्रदर्शन करांती गुरु गुरु नुहंती गुरु होउचंती ईश्वर भागवत रे गुरुंक संपर्क रे मध्य कहा जाइछि अवधूतंक 24 गुरु प्रसंग मध्य आसुछि तेणु एठी कहा जाउछि कोन ना साक्षाते गुरु जे को नमणिब नर गुरुटी सर्व धर्ममय मुहि बसई गुरु देहे एघेनी गुरु भगवान सेनहे मनुष्य समान तेणु मनुष्य जीवन हेउछि दुर्लभ मनुष्य जीवन हेउछि दुर्लभ एवं ए मनुष्य जीवन को एहाको मुक्तिर द्वार रूपे दर्शाई
भागवतकार कहती देख मनुष्य देह मोर केवल मुकतिर द्वार ए देह पाई मही तले हेले तरंती भव जले सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेबर। तेणु इंद्रिय संयम संपर्क रे मध्य यार गुरुत्व रही। एटी ज्ञान जोगर कथा कुहा जाउची, एटी भक्ति मार्गर कथा कुहा जाउची। ए अध्याय रे मध्य ज्ञान जोग को मध्य से आणुचंती। ए अध्याय रे मध्य कहउचंती जे ज्ञान जोगर कथा से कहउचंती आत्मा निवृत्त ज्ञान जोगे निश्चल करी स्वर्ग मार्गे। तेणु ए जो ज्ञान जोगर कथा एटी जो से कहउचंती से ज्ञान बा से जो भक्तिर मार्ग को से आणुचंती से कहउचंती कोन इंद्रिय संयमर कथा ज्ञान जोगर कथा से कहउचंती इंद्रिय मानकर विषय निछाते जहार हृदय से केबे सुख न लभंती स्वकर्म बंधे बंदी होंती। से भली रति सुख रे अत्यधिक तथा अनावश्यक प्रीति न रखिबा पाई मध्य भागवत रे उपदेश दिया जायछि। ये होछि परवर्ती प्रसंग को आमे आम प्रसंग बाहर को जाउछि। तेणु आलोचनार शेष पर्याय रे मु एकथा कहिबी जे मनुष्य जीवन को सार्थक करिबा पाई समाज को सुंदर तथा श्रृंखलित करिबा पाई भागवत रे केते केते गुडिए कथा कुहा जायछि। जो कथा मु कहितिली जे भागवत हेउछि रत्नाकर, एठी विभिन्न रत्न रहिछि। से रत्न भितरु ब्रह्म ईश्वर आत्मा साधु गुरु गुरुजनक सेवार महिमा अहिंसा सत्य वैराग्य ज्ञान धर्म परोपकार विनय सदाचार नीति भक्ति भाग्य अदृष्ट कर्म कर्मफल गृहस्थाश्रम अतिथि अभ्यागतंकर सेवा स्नेह आसक्ति बंधन अभिमान लोभ मोह ईर्षा गर्व हिंसा अहंकार अनित्य मिथ्या अविद्या कपट माया पाप अधर्म अन्याय कलह असंतोष अज्ञान नरक प्रभृति संपर्क रे अनेक उपदेश हित उपदेश और सचेतन बाणी आंभ मानक पाई व्यक्त करा जायछि। से सबु बाणी श्रवणीय पठनीय श्रेय और ध्येय बाणी रूपे आंभ मानक द्वारा गृहीत हेबा वांछनीय। आलोचनार शेष पर्याय व्यक्त करा जायछि व्यक्त मु करूछि आपण मानक आगरे जे सत स्वरूप परमात्मा ठार उत्पन्न होइथांती ब्रह्मांक हृदय रे ओंकार रूपे अंकुरित द्वादश संख्यक स्कंध द्वारा प्रवृद्ध भक्ति रूपी वंदना द्वारा सुरक्षित और पोषित 332 अध्याय रूपी सुदूर प्रसारी शाखारे विमंडित एवं 18,000 श्लोक रूपी पत्र रे सुसंच श्रीमद् भागवत आ नाम कल्पतरु मानव पाई अभिष्ट प्रदानकारी। ठीक से पर देखिबा को गले आम जगन्नाथ दासंक भागवत मध्य आम ओडिया जातिर जीवन वेद जेमती श्रीमद् भागवतर गुरुत्व रही आम ओडिया भागवतर मध्य आम ओडिया जनजीवन रे मध्य बा आम ओडिया अस्मितार परिचय से बहन करूची। तेणु परिशेष रे एटी महापुरुष जसवंत दासंकर द्वारा लिखित भागवत भजन माला को भजिबा पाई मो आम सुधी श्रोता मान को अनुरोध करी कहूची जे भजन माला रे अछि भागवत भजन माला काहे कि आमे भागवत पढिबा से संपर्क रे मध्य भागवत भजन माला रे जसवंत दास उल्लेख करूछंती भागवत भजन माला मन सूत्रे गुंथ नकर हेला प्रथम द्वितीय आगमय बाणी तृतीय ब्रह्मांड सर्जना हेला चतुर्थ रे ध्रुव तप आचरिण अजपा मंत्र को हृदय धइला पंचम रे पृथ्वी 7 भाग करी बाछिण भरत पुओ को देला षष्ठ स्कंध रे पापी अजामिल नारायण नाम हृदय धरिला सप्तम स्कंध रे प्रहल्लाद जन्म हिरण्याक्ष विदारण होइला अष्टम स्कंध रे समुद्र मंथन गज कुंभीरंक युद्ध लागिला नवम स्कंध रे वंशानुचरित दशमे कन्हाई जन्म होइला गोप वृंदावन मथुरा द्वारका बाल लीला भाव एथु सरिला एकादश स्कंधे तत्व निरूपण उद्धवे श्रीहरि करुणा हेला एकाक्षर ब्रह्म जही विराजित अध ऊर्ध्व तही बारी नहिला द्वादश स्कंधरे आगत भविष्य परीक्षित आगे सुख कहिला कहे जसवंत सेवादे शरण अकारणे मोर जन्म गला। तेणु भागवत पठनर कि प्रकार गुरुत्व रही
ताकू से समय रे जगन्नाथ दासଙ୍କ समसामयिक जे जसवंत दास मध्य भागवत भजनमाला रे भागवतर गुरुत्व संपर्क रे मध्य से आमको बा जन समाज को ए प्रकार उपदेश प्रदान करथिले। धन्यवाद आपण माने मते भागवत संपर्क रे किछि कहिबार सुजोग देथिबारु मु आपण समस्तक पाखरे मोर कृतज्ञता जनाउची। धन्यवाद। धन्यवाद वर्तमान आलोचना पर्याय को जीवा। हाँ तो वर्तमान आम चैट बॉक्स रे केतेक प्रश्न परिछन्ते किछि प्रश्नकर्ता मु से सब को पाठ करूछि आपण अनुरोध जे आपण प्रश्नकर्तांकर संशय मोचन करंतु। प्रथम प्रश्न चक्रधर महापात्रंकर जे भागवतर जन्म केबे होइथिला श्रीमद् भागवतरे श्रीमद्र अर्थ कौन? अच्छा मु टिके प्रश्न गुड़ाक देखी दिए तापर व्यासदेव रचित संस्कृत भागवत आमर निरंजन सर अच्छे कि निरंजन सर? हाँ सर हाँ मैडम अच्छी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ मैडम कहतु मैडम। हाँ आपण प्रश्न थिला संस्कृत भागवत और जगन्नाथ दास भागवत मध्य मुख्य पार्थक्य कौन? आमे ओडिया भागवत भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त होई परिबा ना नाही? आपण भागवतटा को जगन्नाथ दास भागवतटा को आमूलचूल पढ़ी चंती त प्रथमे? हाँ 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 पढ़ी छु। आज्ञा सेथरु आपण कोन ताले जानिबा को पाइले? नहीं प्रायतः ये गोटे मर्मानुवाद संस्कृत भागवतर गोटे मर्मानुवाद होइचे एथरे किंतु किछि भी नहीं अक्षरिक अनुवाद में गोटे मर्मानुवाद नुहे एटा होची अनुसृजन आमे ताकू कहिबा प्रथम कथा एटा होची प्रथम डिफरेंस जे संस्कृत भागवतर अक्षरिक अनुवाद से करि नाहंती तार अनुसृजन करिसंती। अनुवाद और अनुसृजन भितर मध्य तफात अछि आपण जानि परिबे तापर कहंतु। आमे जदि ओडिया भागवत पढ़िबा विभिन्न जगह रे प्रवचक माने सब संस्कृत भागवतर श्लोक माना उदाहरण करी माने उद्धार करी बुझेई थांती। हां तेणु जदि आमे जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत आमे ओडिया भाव में पाठ करिबा ताले आमे कोन भक्ति तत्व ज्ञान पाई परिबा नाही कि मैडम? पाई परिबा सेटा मोर प्रश्न थला ना पाई परिबा आमे मुबा कहली भागवत रे भक्ति मार्ग ऊपर गुरुत्व दिया जायछि ज्ञान मार्ग ऊपर गुरुत्व दिया जायछि तेनु आमे पाई परिबानी केमति भक्ति तत्व ऊपर तो मुख्यतः गुरुत्व दिया जायछि। मैडम आज प्रसंग कौन थिला टिके आपण ओहरी गले बोधे टिके देखंतु आज प्रसंग प्रसंग ओहरी नी मु प्रसंग को प्रथमे आनिची आपण बोधे प्रसंग रे नथिले प्रसंग उपस्थापन कला बेले मु प्रथमे नहीं कथा वस्तु को मु आनिची आपण कथा वस्तु ऊपर जहा मु आलोचना कली सुत उवाच अर्जुन उवाच तापर दुईटी सुत उवाच आसुची सुत उवाच रे जहा कहा जायछि अर्जुन उवाच रे अर्जुन तांकर गुण स्मरण करूछंती श्री कृष्णकर प्रथमे खांडवन दहन प्रसंग को आनुछंती से प्रसंग मध्य मु कहिछि तापर द्वितीय रे से आनिछंती हमर द्रौपदीଙ୍କ प्रसंग आनिछंती से प्रसंग मध्य मु कहिछि तापर जो पांडवଙ୍କ स्वर्ग गमन कथा आछला कि मैडम पांडवଙ୍କ स्वर्ग गमन कथा मध्य मु कहिछि कहिछि शेष को कहिछि पांडवଙ୍କ स्वर्ग गमन कथा हमर जते आलोचना करा जाय आज्ञा मु आ एठी कोन लाइन धर की बसी की बुझेबी कि सेमिति आलोचना मु मते भलो लागेनी गोटे गोटे धाड़ी धाड़ी धर की बसी की बुझेबा मु जते बेले गोटे कंटेंट को जाउची सेते बेले मु तार कथा वस्तुटा कोन अछि मु ताको प्रथमे आपण मान का आगे रखिली जे एटा होची तार कथा वस्तु ए कथा स्मरण करि सारिबा परे पांडव पांच भाई स्वर्ग गमन उद्देश्य रे प्रस्थान करूछंती ए प्रसंग मध्य एठी अछि लेखा हेछि मु मध्य बही एठी धरिछि सेठी लेखा हेछि कोन ना देखंतु एठी गोटिए धाड़ी केवल लेखा हेछि
आपण देखंतु पंचदश अध्याय रे गोटे धाड़ी लिखाई परम ब्रह्म चिंता करी प्रस्थान स्वर्ग पथ हेरी केवल गोटे धाड़ी रे ही से स्वर्ग गमन करुछंती बोली लिखा जायछि किंतु एठी को जिंस को से गुरुत्व दउछंती आमे जते बेले तार एंड माने उपसंहार को आमे जते बेले पहुंचुचे से उपसंहार रे सुत उपाच भितरे से जो पांचटी पंक्ति कहउचंती से पांचटी पंक्ति भितरे ही हमरा भागवत पाठर महत्वटा तारी भितरे रहुची तेनु से महत्वटा कोन से महत्वटा को आनिबा पई मु एनालिसिस कली एतिकी गुडे जिंसर हमरा भागवत को कोन कोन किए कोठी कोन कहिचंती बुझी पारले हेलो हाँ मैडम कहतु हाँ मु कहली बुझी पारले तो तले मु को प्रसंगटा छाडिली आपण कहंतु किछ ना ठीक अछि मैडम नहीं आपण कहिले ना जे आपण प्रसंग रो ओहरी गले बोली मु को प्रसंगटा छाडिली ताहले मुख्य प्रसंग स्वर्ग गमन प्रसंगटा मुख्य प्रसंग थला तांकर स्वर्ग गमन केमिति हला काहे कि हला को परिस्थिति रे हला एवं स्वर्ग गमन पर तांकर स्थिति कोन हला एटा टिके हमें जानिया चाहतु मैडम से प्रसंग ए अध्याय रे अछि आपण पंचदश अध्यायटा पढिचंती आपण प्रसंग आड़ को जानतु टिके मैडम मते काहे प्रश्न करचुंती आमे तो आपण प्रवक्ता आमे तो खाली श्रोता आमे पढिजु न पढिजु आपण जानतु नहीं मु पढिली आज्ञा मु पाइलिनी मु जहा पाइली मु आपण मान को आगे रखिली ठीक अछि मैडम धन्यवाद मैडम धन्यवाद आउ जने पचारचंती भागवत लेखा हेबार प्रसंग संपर्क रे कहिबे कि भागवत काहे कि लेखा हैतिला दिलीप कुमार भोई साधारण लोकंक पई भागवत केते दूर बोधगम्य स्वर्णमयी पुरोहित स्वर्णमयी मैडम हाँ मैडम नमस्कार मैडम हाँ मैडम नमस्कार मैडम आमर भागवत केते दूर बोधगम्य जदि आमे से प्रसंग को जिबा ताने मो जानिबारे भागवत आमर तो आम जनजीवन पई निहाती आम मानक पई समस्त को पई बोधगम्य काहे कि ना भागवत जो भाषा रे आमर लेखा हिची जो स्टैंडर्ड ओडिया लैंग्वेज रे लेखा हिची ताहा आम पई कदापि माने अगम्य नुहे आमे ता भीतर को जाई परिबा नी बोली किछि कथा नाही जो सेति पाई त भागवत टुंगी हमर हेकिरी गाँ गाँ रे हमर भागवत पाठ करा जाए आ भागवत मो जानि बारे सब माने गाँ रे जते हमर वयस्क लोक थांतु जे थांतु समस्त को मुहरे भागवत पंक्ति रहिताय जदि बोधगम्य न हेई थांता ताने भागवत साधारण लोकंक बाकरे पहुंची पारि न थांता मैडम जेतेबेले आमे खूब साधारण लोकटिए जेतेबेले ताकू पाठ करूची जदि आमे कहिबा माने जे भल भाबरे शिक्षित हेई पारि नाही जे किछि पाठ पढिची ओडिया साहित्य संपर्क रे जार धारणा अछि ता पई बुझिबारे किछि कष्ट नाही किंतु खूब साधारण गोटे व्यक्ति पई की तार बोधगम्यता केते रहिची मैडम सेही कथा मु जानिबा पई चाहूत मो से कथा कहूची मैडम आम गाँ रो गोटे निरक्षर लोक जते बेले भागवत पढुची से कोन करूची तार पंक्तिटा को से मने रखुची प्रथम कथा से बुझु न बुझु से तार पंक्तिटा को मुखस्थ करिकरी से मने रखि दउची एवं से ताकू ही ताकू ता जीवन रे लगौची तेनो आमे केमिति कहि परिबा जे एटा माने बोधगम्य होउ नाही बोली से तो प्रतिदिन जो संध्या बेले भागवत पाठ करा जाउची भागवत टुंगी रे हो बा हमर कोनोसी गोटे मंदिर प्रांगण रे हो जते बेले भागवत पढ़ा जाउची हमर साधारण लोक हमर साधारण लोक निश्चय ताको बुझुचंती आ भागवत रे एभली कोनोसी माने शब्द नाही जोटा अबुझा हैला भली हम मानक पई आ भागवत हमर देशज ओडिया भाषा रे ही लिखा जाईची सेठी कोनोसी संस्कृत शब्दर विशेष जो बहुलता नाही अब सेति पई ते हमें भागवतर भाषा को स्टैंडर्ड ओडिया लैंग्वेज बोली हमें सेउटु धरिले
ହେଲା ତେणु ଅତି ସହଜ ସରଳ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ କି ଦିलीप ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଦିलीप ସାର୍ दिलीप सर हेलो हेलो अछंती अछंती दिलीप सर अछंती। हाँ सर आपण भागवत लेखा प्रसंग तो सुनी थिबे जेतेबेले जगन्नाथ दासंकर माँ जाउथिले पुरी मंदिर को जो पुराण सुनिबा पई सेतेबेले ब्राह्मण पंडित गोष्ठी तांको जो विरोध करथिले एवं जगन्नाथ दास सेठी पुरी मंदिर रे बसिकी सेठी भागवत लेखा अनुसृजन आरंभ करथिले ए कथाटी आपण सुनिजंती ना नहीं? आज्ञा 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 आपण को कथा म सुनी पारुनी। हेलो मैडम हेलो हाँ मो माने मूल भागवत लेखा हबार प्रसंग पचारुछि मैडम उड़िया भागवत लेखा प्रसंग चाहुनी जे कोन पई किए कहा को भागवत सुनकर आवश्यकता पड़िला काहे कि लेखा गला ई कथा जाने चाहुछि मैडम। काहे कि लेखा गला ये प्रश्नर उत्तर नहीं मैडम मैडम जय जगन्नाथ। नहीं मैडम मु मैडम जय जगन्नाथ। मैडम जय जगन्नाथ। आज्ञा सभापति अनुमति नहीं धाड़िए कहबी कि आज्ञा कहंतु महर्षि व्यासदेव भागवत लिखिछन्ति प्रथमे मूल भागवत संस्कृत रे हाँ व्यास लिखिछन्ति श्यामाप्रसा आश्रम रे सरस्वती नदी कूल रे बसिकिरी 18टा पुराण लिखि सारला परे समस्त वेद को विभागीकरण कला परे व्यासंक मन रे सुख नथिला व्यास दुख मन रे बसिथिले नारद आगमन हैला नारद पचारे व्यास जी कहीं दुख मन रे बसचंती तो व्यास कहले 80 वर्ष काल पोथी लेखि लेखि मथे आनंद मिलू नाही मु किछि को पोथी लेखि पर्यंत जानी पारु नाही जो पोथी की जगत को आनंद दब सेठी नारद उपदेश अनुसार व्यास को भागवत नारद बुझेले प्रथमे भगवान नारायण मैडम टिके टिके भगवान नारायण ब्रह्मा को भागवत बुझेले ब्रह्मा नारद को कहले नारद को चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा कहले चतुश्लोकी भागवत को नारद 10 श्लोक व्यास को बुझेले 10टी श्लोक को व्यास 18,000 श्लोक कले 18,000 श्लोक करवा परे संस्कृत भागवत प्राकृत लोक दुर्वेद्य थिला जेतेबेले श्रीमंदिर आमर बटगणेश निकट में संस्कृत भागवत पुराण पंडा पाठ करुले जगन्नाथ दासंकर माँ दिने जाई नथिले से बुझी पारि नाहांती परदिन जाई पहुँचिले पचारे महाशय मते बुझेदेवे कि से अपमानित हेले जो अपमानिता हेले आसी तांको पुओ को कहले एवं मार दुख मन को पुओ बुझिला गोटे माँ गोटे विराट सृष्टि की तैयारी कर दे पारे गोटे माँ गरुड़ करिछि गोटे माँ शिवाजी करिछि तेणु मार अपमान को नहीं जगन्नाथ दास एक मुहा होकर श्रीमंदिर दौड़िले एवं गरुड़ स्तंभ पछपाखे हाथ टेकी कहले महापुरु मो मार अपमान को मु सह्य करि पारु नाही एबे मु भागवत रचना करी भागवत जहाँ रचना कर जगन्नाथ दास ताहा अनुवाद नुहे आपण जो कहले अनुसृजन ता ठीक आमर स्वर्णमयी पुरोहित महाभागा जो कहले भागवत बड़ बड़ शिक्षित लोक दुर्वेद्य अशिक्षित लोक सुबोध्य बेले बेले सुबोध्य बेले बेले दुर्बोध्य भागवत ओडिया लोक माने बुझी पारंती ओडियार सबु लोक बोधगम्य कहीं ना परम शास्त्र मैडम टिके परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य 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 अभ्यास कले नीति नीति गोविंदे बढ़ई पिरती जदि सबुदिन पढ़िबो ताहले बुझा लोक अबुझा अबुझा लोक भी बुझा बेले बेले यही कथा हुए। जय जगन्नाथ आपण मान निकट में मत पदे कहवा सुजोग देथिबारु मु आपण मानकर जदि किछि शंका दूर होइतिबो नहले परवर्ती पर्याय दूर करा जाई परिबो। जय जगन्नाथ। सर सर एडी बो टिके कहूची सर टिके अनुरोध करिवे मते क्षमा मागुची सर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଦେ କହୁଛି ଏଇ ପାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଶ୍ରୀମଦ ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଉଛି ଯେ ଭାଗବତ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ନାରଦ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ଶୁକଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାଗବତ ରଚନା କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୋଟ କରିଛି ଲେଖିଛି ଯେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ ନାରଦଙ୍କୁ ତାପରେ ଶୁକଙ୍କୁ ଏବଂ ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା କଥା ପଡିଛି ଲେଖି ସୁକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ସୁକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସୁକ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା କଥା ପଡିଥିଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଥା ପଡିନି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଅର୍ଥଟା କଣ ଏବଂ ଭାଗବତ କେବେ ରଚନା ହେଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଠୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲା ମହର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ କୋଉଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢିବେ ପାଇବେ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଯେଣୁ ନକଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନୋହି ସେ ଧର୍ମ ନ୍ୟୁନ ଅଟଇ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ପଥେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା କିଛି ଶ୍ରମ ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ କହିବ ଶୁଣ ଉପଦେଶ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଆମେ ପାଇବା बड़ा सुंदर लगिला सब आलोचनाटी ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ସଭାପତି ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି श्रीपति सर म्यूट रे अछंती अनम्यूट करंतु हेलो हेलो आगे सर समाप्ति टिप्पणी अनुरोध हेलो आगे सर हौ सर आपको अनुरोध करूँ समाप्ति टिप्पणी रखिबा निमंते हाँ जाओ आज मैडम विजयलक्ष्मी दास डॉक्टर विजयलक्ष्मी दास से भागवत आख्यायिका पांडवों स्वर्गगमन विषय विभिन्न शास्त्र जो टिप्पणी मान आम आगे उपस्थापन कले ताहा प्रणिधान योग्य आउ केतक भाई आमर अवश्य तांकर टिप्पणी उपरे निज निजर मतामत रखिले ताहा मध्य बहुत शिक्षणीय एवं ग्रहणीय मध्य आजिर पाठचक्र कार्य समय हो सारी
ତେଣୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ ସଂଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଏହି ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସଭାପତିଙ୍କର ଏହି ସମାପ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କଳ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରୁଚି ପ୍ରଭା ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସଂଯୋଜିକା ଭଉଣୀ, ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିକାର ପାଠଚକ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ନିମନ୍ତେ ଚୌରି କାଞ୍ଚନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦୀନରଞ୍ଜନ ପାଢୀ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ଦୀନରଞ୍ଜନ ପାଢୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? शान्तिः सर्व शान्तिः ॐ शान्तिरेव शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः